Hallelujah. Hallelujah. Shalom. Thank you, Jesus. Greetings to all of you. सभी को यीशु मसीह के नाम में शुभकामनाएं। यीशु मसीह का हाथ आप सबके ऊपर हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह का धन्यवाद। Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus of Nazareth. Hallelujah. Lord, we bless your name. We bless your name. Lord, we praise your name. We praise your name, Lord Jesus. जय यीशु मसीह की। Hallelujah. 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 Lord, we bless you, Lord Jesus. Hallelujah. Glorious Jesus, we bless your name. Wonderful Savior, risen. Hallelujah. Triumphant one on Satan, on hell, on every sickness, disease, every pestilence. Your name is victorious Jesus. We bless you. तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। तेरे नाम की हम महिमा करते हैं यीशु नासरी। तेरे नाम की हम स्तुति गाते हैं। हालेलुया हालेलुया। स्तुति गाते तेरे चरणों में आते हैं। धन्यवाद। हालेलुया। आइए मिलके गाएं प्रभु के लिए। ऐ खुदावंद मेरे तू कर रखवाली है। खुदावंद मेरे तू कर रखवाली। मेरा सब भरोसा तू यूं है रब वाली। मेरी जान खुदा नो ए हो कैद आई। मेरी जान यसू नो ए हो कैद आई। तेरे बाजों मेरी नहीं है भलाई। ऐ खुदावंद मेरे तू कर रखवाली। Let's pray. Father, in the name that is highly exalted, most glorious, matchless, unrivaled name, that every knee will bow, that every tongue should confess that glorious name of Jesus. In that name we bow the knees of our heart this evening. Father, I pray for all these wonderful sons and daughters of yours from wherever around the world they are logging in. I pray, Father, that your hand will be upon them. Father, through this meditation on your word and through your adoration and praise, through this time, Father, your people will experience the warmth of your love. Father, they will be drawn into an intimate presence. They will be drawn closer to you. Their lives will be challenged by your love, your power, Father. I pray in the mighty name of Jesus, you will anoint them. You will anoint their homes, their families, and you will protect your people from this ravaging pestilence that is wreaking havoc on the earth. Father, I plead the blood of the Lamb. तेरे लहू को मैं छिड़क देता हूँ सबके ऊपर खुदावन। हालेलुया। तेरे नाम की हम महिमा करते, तेरे नाम की स्तुति गाते हैं यीशु मसीह। आंखें बंद कीजिए सभी, अपना मुंह खोलिए, यीशु मसीह का नाम लीजिए। वो नाम जो जिब्राइल फरिश्ते ने मरियम को बताया, वो नाम है यहूशा हा मशियक। मेरे संग बोले, यहूशा हा मशियक, 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 यहूशा हा मशियक। स्वर्गीय पिता ने अपना नाम जो मूसा को
आग की बलती झाड़ी में प्रकट किया। मेरे संग बोले हाइया आशेर हाइया। मेरे संग बोले हाइया आशेर हाइया। से आफ्टर मी, हाइया आशेर हाइया, द मोस्ट ग्लोरियस नेम ऑफ द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, Yahuwah our Father is Hayya Asher Hayya. Say after me, Hayya Asher Hayya. Blessed be your glorious name, most sacred name, God of Israel. We bow before your throne of grace. Hallelujah. And Father, we prostrate in your presence. We have come with our hearts filled with gratitude and appreciation on our lips, oh Father, to bless you for having given us your glorious Son, King of glory, the Lord Jesus Christ. We bless you for precious Jesus, Father. We bless you for precious Jesus, for his precious blood has redeemed us and sealed us. Hallelujah. And marked us till the day of redemption. Father, we celebrate the blood of the Lamb. Father, I sprinkle that precious blood over everyone that has logged on and those who will listen to this message afterwards. Father, may your presence saturate this broadcast. Hallelujah. We want to see Jesus lifted up. यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। बहुत सारे लोग अलग अलग कंट्रीज से जुड़ रहे हैं। रिसेंटली लोग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, कैरेबियन आइलैंड, यूएस, कनाडा, ब्रिटेन और यूरोप के कई कंट्रीज से, अफ्रीका के कई कंट्री से लॉग इन किए। एंड the problem is that if I switch into English, then people who don't understand English, they don't get a clue what I am talking. And if I speak in Hindi, there are majority of people who understand Hindi, so I sometimes have to switch on to Hindi and switch off to English and switch on off to English and switch on to Hindi. तो चलिए हम प्रभु के वचन में से आज सीखेंगे मिस्र के ऊपर जो बवाएं परमेश्वर ने भेजी उनकी क्या सिग्निफिकेंस है। मिस्र का न्याय किया यहोवा परमेश्वर ने। आपको मालूम मिस्र का न्याय क्यों किया यहोवा परमेश्वर ने? मिस्र का राजा फिरौन, वो अमीनी टॉप द सेकंड था। मैंने आपको बताया अमीनी टॉप द सेकंड जो था वो ग्रीक गॉड जो कैनानाइट पैंथियन में ऋषभ के नाम से जाना जाता था। ग्रीक लोग मानते थे, एंशंट पैंथियन के लोग मानते थे कि वो सूर्य के रथ को आगे चलाने वाला है। ऋषभ सूर्य के आगे रथ जुते हैं और वो उसको चलाता है। अमीनाटॉप द सेकंड ने उस पैंथियन के गॉड को अपना गॉड बनाया कि वो उसका रथ चलाता है। हालेलुया। और उसने आपको मालूम चैलेंज किया, चुनौती दी जीवित परमेश्वर यहोवा को। उसने कहा कौन यहोवा, मैं उसे नहीं जानता। कौन, क्या उसका नाम है, कौन यहोवा है, मैं उसे नहीं जानता, ना ही मैं उसके लोगों को जाने दूंगा। आज ये सारी स्टोरी के ऊपर हम मेडिटेट करेंगे, लेकिन मैं जल्दी से आपको बताना चाहता हूँ। आप ये रेफरेंस लिख सकते हैं, इसके बाद भी मैंने कोट करूँगा। निर्गमन की पुस्तक जिसे हम एक्सोडस कहते हैं, निर्गमन की पुस्तक एक्सोडस उसके 7 अध्याय के 14 से 25 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहली बवा परमेश्वर ने जो भेजी वो नील दरिया के पानी को खून में बदल दिया। अगर आप यहूदी रब्बियों से इसका अध्ययन करेंगे, सीखेंगे, मसीहानिक जूस भी बताते हैं कि यहोवा ने मिस्र के अंदर जो बवाएं भेजी वो एक मिलिट्री इन्वेजन था। जैसे दो देशों की फौज आपस में लड़ती है, इस तरह की डिवाइन स्ट्रेटजी के साथ यहोवा ने युद्ध किया। जैसे फौज लड़ती है, फौज सबसे पहले पानी के सोर्स को काटती है कि शत्रु के देश का पानी का सोर्स काट दिया जाए ताकि उन्हें पानी की सप्लाई ना मिले। यहोवा परमेश्वर ने क्या किया, यहाँ पे लिखा है एक्सोडस 7 के 14 से 25 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने नील दरिया के पानी को खून में बदल दिया। आपको मालूम नील दरिया के ऊपर जब जजमेंट लानी थी तो मोसेस नहीं गया, मोसेस ने लाठी नहीं मारी। वो मालूम क्यों? क्योंकि मूसा को मालूम था कि नील दरिया ने उसे बचाया था। इसलिए हारून अपनी लाठी मारता है
और नील दरिया का सारा पानी खून में बदल जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मिस्र के देवताओं के ऊपर यहोवा ये जजमेंट लेकर आया। मिस्र के पैंथियोन के साथ यहोवा ने युद्ध किया। मिस्र का एक देवता था, उसका नाम था खून, KHUN खुनुम, और वो नील दरिया का रक्षक था। उस देवता का न्याय किया यहोवा ने। हापी देवता का न्याय किया। हापी जो नील दरिया की आत्मा जो थी, उसे हापी देवता करके पूजा जाता था, और ये माना जाता था कि इसके अंदर उसकी आत्मा बसती है देवता की। और ओसिरिस जो देवता था, वो ये माना जाता था कि नील दरिया के अंदर उसकी ब्लड स्ट्रीम है ओसिरिस की। तो परमेश्वर ने इन तीनों के तीनों देवताओं का न्याय किया, लाल समुद्र को खून में बदल दिया। दूसरी बवा जो यहोवा परमेश्वर ने भेजी, वो निर्गमन की पुस्तक 8 अध्याय की 1 से 15 में आप पढ़ते हैं, यहोवा परमेश्वर ने फ्रॉग्स भेजे, मेंढक भेजे। लेकिन अगर आप उसे बारीकी से उस हिब्रू वर्ड की स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि वो फ्रॉग भी है और छोटे छोटे वो क्रोकोडाइल्स हैं जो यहोवा परमेश्वर ने भेजे। और मिस्री लोग, हापी एक देवता, जैसे मैंने आपको बताया रिवर का देवता था नाइल का, हापी, और हिकित एक देवता है, फर्टिलिटी का गॉड। इन दोनों का न्याय किया मेंढक को भेज के, और क्रोकोडाइल, ये जो स्मॉल क्रोकोडाइल को भेज के। तीसरी बवा थी निर्गमन की पुस्तक 8 अध्याय के 16 से 19 में, लाइस, जुएं जिन्हें बोलते हैं। और ये भी मूसा ने लाठी नहीं मारी इस समय भी, क्योंकि पृथ्वी की जो भूमि थी डस्ट थी। जब मूसा ने एक मिस्री को मारा था तो पृथ्वी की डस्ट ने उस व्यक्ति की डेड बॉडी को छिपा लिया था। ये बवा भी हारून लेकर आया। और सेब एक देवता था मिस्र का, जिसे अर्थ गॉड कहा जाता है। पृथ्वी को जैसे अलग अलग तरह से अलग अलग पैंथियोन में धरती को पूजा जाता है, सेब पृथ्वी के देवता का यहोवा ने न्याय किया। चौथी बवा थी फ्लाइज भेजी। फ्लाइज भेजी यहोवा ने। वो निर्गमन की पुस्तक 8 अध्याय के 20 से 32 वचन में हम पढ़ते हैं कि फ्लाइज यहोवा ने भेजी। और उचित एक देवता था, उचित, वो फ्लाई गॉड था, वो फ्लाइज का परमेश्वर था, देवता था उनका, उसका यहोवा ने न्याय किया। फिर वचन बताता है कि यहोवा परमेश्वर ने निर्गमन की पुस्तक 9 अध्याय के 1 से 7 वचन में प्लेग भेजी। आपको मालूम, प्लेग के लिए जो वर्ड है बाइबल के अंदर, वो देवता लोग हैं, कनानियों के, हित्तियों के, जिबूसियों के, गिरगासियों के, मिस्रियों के, यूनानियों के, अलग अलग पैंथियोन के देवता है, बदरुएं हैं जिन्हें यहोवा रिलीज करता है। ये वो बदरुएं हैं जो 6 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक में नफलीम, जायंट मरे, जायंट और गिबरीम मारे गए, उनके अंदर से जो सोल निकली है, वो हैं ये डीमंस। तो वचन में लिखा है यहोवा ने उनका न्याय किया। फटा एक देवता है, PTAH, फटा मिस्रियों का। और दूसरा हथौर, तीसरा अमोज, और मन्नीविस एक देवता था। ये जो चारों के चारों देवता हैं, ये जानवरों के देवता है, सांडों के, भैंसों के, बुल्स के, गोट्स के देवता हैं। परमेश्वर ने इनका न्याय किया। जानवरों के ऊपर यहोवा ने बवा भेजी, इन देवताओं का न्याय किया। छठा जो परमेश्वर ने बवा भेजी वो बॉयल्स की थी, फोड़े निकल आए। निर्गमन की पुस्तक 8 अध्याय के 8 से 12 वचन में आप पढ़ेंगे तो यहोवा परमेश्वर ने क्या किया, बॉयल्स भेजे। और मिस्रियों के 3 देवता थे। एक था सिकेमेत, जो गॉडेस ऑफ एपिडेमिक, बवाएं लाने वाली देवी थी, सिकेमेत। फिर सराफिस और इमोटेप, सराफिस और इमोटेप 2 देवता थे, इनके द्वारा मिस्री लोग चंगाई करते थे। ये दोनों देवताओं के पास गए जब फोड़े निकले कि ये देवता उनको चंगा करें, लेकिन वो चंगा नहीं कर पाए। परमेश्वर ने तीनों मिस्री देवताओं का न्याय किया। और आपको मालूम, 7वीं जो बवा थी वो हेल थी, जिसे गड़े बोलते हैं। निर्गमन की पुस्तक 9 अध्याय के 13 से 35 वचन में जब आप पढ़ते हैं तो ये बवा आपको मिलती है। इसमें परमेश्वर ने क्या किया, नत एक देवता है, नत, परमेश्वर ने हेल भेजी। नत स्काई गॉडेस है, स्काई की गॉडेस है नत। आइसिस और सेथ ये एग्रीकल्चर के देवता है।
और शू एटमॉस्फेयर का, वातावरण का देवता है। ये चारों देवताओं का यहोवा ने न्याय किया है। मिस्रियों ने इनके आगे प्रार्थना की कि हेल हटा दी जाए, लेकिन इनकी प्रार्थना सुनी नहीं गई। हालेलुया। और आपको मालूम 8वीं वबा थी लॉकस्ट की, जिसे टिड्डियां बोलते हैं। निर्गमन की पुस्तक 10 अध्याय के 1 से 20 वचन में आप पढ़ सकते हैं। टिड्डियों की वबा यहोवा ने भेजी। सराफिया नाम का एक गॉड था, देवता था मिस्र का, जो लोकस से बचाता था। टिड्डियों से बचाने के लिए सराफिया देवता की पूजा की जाती। जब टिड्डियां आई, मिस्र के जादूगरों ने और वहां के पुजारियों ने उस देवता का अनुष्ठान किया, लेकिन वो देवता बचा नहीं सका। हालेलुया। और 9वीं जो वबा आई वो थी डार्कनेस की, अंधेरा आ गया। निर्गमन की पुस्तक 10 अध्याय के 21 से 29 में पढ़िएगा आप, तो वचन आप इतिहास पढ़ेंगे तो रे एक देवता है, आरी रे, और रे, और दूसरा देवता है अमीन रे, और एक देवता एथेन और अटुम और होरस और थॉट। ये कौन कौन से देवता हैं? ये पहले 4 देवता रे, अमीनरे, एथेन, अटुम, होरस, ये सन गॉड हैं। सूर्य देवता की पूजा करते हैं इन देवताओं के द्वारा। और थॉट जो है वो मून गॉड है, सूर्य और चांद की पूजा करते थे। परमेश्वर ने अंधेरा ऐसा भेजा, ये वबा 3 दिन तक रही। वचन बताता है कि ऐसा अंधेरा था कि बंदे को ऐसे अपना हाथ भी नहीं दिखता था। बहुत कठिन वबा मिस्र के ऊपर आई, 9th प्लेग। और इसके बाद आप जानते हैं 10वीं प्लेग जो परमेश्वर ने भेजी, पहलौठों को मार दिया। फिराउन फ्रीक्ड आउट, डर गया बिल्कुल, क्योंकि फिराउन खुद भी पहलौठा था। फिराउन का पहलौठा बेटा भी मर गया। निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय के 29 से 36 में पढ़ लीजिएगा इसका जिक्र। परमेश्वर ने मिस्र के सारे देवताओं का न्याय किया। पहलौठों की भी पूजा की जाती थी मिस्र में। परमेश्वर ने मिस्र के पहलौठे आपको मालूम क्यों मारे? क्योंकि मिस्र के राजा ने इसराइलियों के सारे बच्चे मार दिए थे। यहोवा ने बदला लिया। हालेलुया। आइए हम अभी थोड़ा इसका अध्ययन और बारीकी से करते हैं। 10 वबाएं बाइबल में मिस्र को मिस्राइम कहा जाता है और फिरौन को फर्रू कहा जाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने ये जो वबाएं हैं, इसको अगर आप, जो मैंने अभी आपको बताई, ये 3 3 3 और 1, 3 3 3 9 एंड 1, ये 3 3 के सेट के अंदर हैं ये प्लेग्स। और अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, ये वबाओं को भेजने का जो पूरा टाइम है ऑलमोस्ट 11 मंथ है। ऑलमोस्ट, बीच में ब्रेक है, बीच में कई वीक्स के लिए यहोवा परमेश्वर उन्हें रिपेंट करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, अपनी ओर वापस लौटने के लिए अवसर देता था यहोवा परमेश्वर। लेकिन मिस्रियों ने ऐसा किया नहीं। हालेलुया। ये जो पहली 3 वबाएं हैं, इसका बड़ा गहरा अध्ययन है। पहली 3 जो मैंने आपको वबाएं बताई, और फिर दूसरी 3, फिर तीसरी 3, इसका मैं आपको बताता हूं भेद क्या है, रहस्य क्या है। हालेलुया। तो जैसे मैंने आपको बताया, यहोवा एक आर्मी की स्ट्रेटजी लेके लड़ने के लिए आया। सबसे पहले पानी काट दिया उनका, पानी काट दिया, पानी को काट दिया। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर के आगे, आपको मालूम फिरौन ने घमंड में क्या कहा था कि यहोवा कोई परमेश्वर नहीं है, मेरे देवता है और कोई परमेश्वर नहीं। वो बहुत देवताओं को मानता था, लेकिन सच्चे और जीवित सृष्टि के रचयिता को नहीं मानता था। उसने यहोवा परमेश्वर की एग्जिस्टेंस को डिनाई किया। तो पहली 3 वबाएं ये बताती है कि परमेश्वर है। पहली 3 जो मैंने आपको वबाएं बताई, परमेश्वर की एग्जिस्टेंस को प्रूव करती हैं कि परमेश्वर है और वो जीवित परमेश्वर है। चौथी, 5वीं और 6ठीं जो वबा है, उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। जो मैंने आपको ऑर्डर बताया, वो वबाएं ये बताती हैं, वो नेचर के ऊपर हैं। वो वबाएं ये बताती हैं कि इस सृष्टि के ऊपर यहोवा का नियंत्रण है, देवताओं का नहीं है। वो सोचता था कि ये मेरे देवी देवता हमारी प्रोटेक्शन करेंगे, रक्षा करेंगे, इनके हाथ में है एलिमेंट, सारे एलिमेंटल स्पिरिट इनके हाथ में है, नेचर इनके हाथ में है। तो दूसरी जो 3 वबाएं हैं, वो ये इसके द्वारा ये लेसन दिया यहोवा परमेश्वर ने फिरौन को कि सारी सृष्टि मेरे हाथ में है, मैं चला रहा हूं सृष्टि को। हालेलुया। और 7वीं 8वीं जो वबा थी,
ये बड़ी डिफिकल्ट बवा थी, 7वीं 8वीं और 9वीं वर्स्ट थी। डार्कनेस इतनी थिक थी, मैंने आपको बताया। इस बवाओं के द्वारा यहोवा ने बताया कि एब्सोल्यूट पावर ब्रह्मांड की मेरे पास है। हालेलुया। सारी सृष्टि का स्वामी मैं हूं। हालेलुया। और दास जो 10th प्लेग भेजी ना यहोवा ने, जिस घर के बाहर लहू नहीं लगा था, परमेश्वर ने मिस्रियों से कहा, इसराइलियों से कहा जो उसकी प्रजा थी, कि एक मेमने का वध करके उसका लहू घर पे लगाना। आपको मालूम कैसे लहू लगाया गया? ऐसे घर की चौखट पे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यूं 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 और यूं। ये ताब बनता है हिब्रू भाषा का। अलफ और ताब है यीशु मसीह। यीशु मसीह कहते हैं मैं अलफ और ताब, ये अलफ ताब का चिन्ह इधर लगाया जाएगा। हमारे नहीं, हम तो उठा लिए जाएंगे, लेकिन जो लोग सताव में चले जाएंगे और जो प्रभु की शरण में आएंगे उस समय, उनके ये चिन्ह लगाया जाएगा। और 1,44,000 के अलफ ताब का चिन्ह लगाया जाएगा। ऐसे, यूं यूं और यूं घर की चौखट पे लगाया गया था। नीचे सिल पे नहीं लगाया गया था, जो नीचे आता ना थ्रेशोल्ड, जहाँ पे पांव रखे जाते हैं, वहां नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि जो यीशु मसीह के लहू को पांव के नीचे कुचल के निकल जाता है, उसके लिए मोक्ष नहीं है। वो परमेश्वर की मुक्ति का स्वाद चख के, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की गरिमा, परमेश्वर की सामर्थ और प्रेम की अनुभूति लेके उस पवित्र लहू को पांव के नीचे रौंद के चला जाता है। इसलिए यहोवा ने इसराइलियों को नीचे की चौखट पे लगाने के लिए नहीं कहा था। आपको मालूम, ये जो वर्ड है पिशाक, ये हिब्रू वर्ड है पिशाक, जिसे हम बोलते हैं फसा। ये हिब्रू वर्ड है पिशाक। पिशाका का मतलब होता है जंप कर जाना। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने कहा मैं पिशाका करूंगा, तुम अपने घर के बाहर लहू लगाना। यहोवा ने कहा मैं निकलूंगा, और मौत का जो दूत है, तुम जिस घर के आगे लहू होगा वहां से जंप कर जाएगा। पिशाका ये है फसा, जिसके द्वारा हमारे पुरखे इसराइली बचाए गए और जिनके द्वारा आप और हम बचाए जा रहे हैं। हालेलुया। अगर आपने नया जन्म पाया, अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, अगर वचन आपके इधर लिखा गया है, आप पवित्र और धर्मी जीवन जी रहे हैं, फिर आपको, जैसे कई नबी बोल रहे थे ना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको लहू ने कवर किया हुआ है और कोई बला आपके डेरे के पास नहीं आएगी। हालेलुया। आपको मालूम, प्रभु ने पहले पानी की सप्लाई काटी, उसके बाद अगर पुराने इतिहास को आप पढ़ेंगे, जब लड़ाइयाँ की जाती थी, पहली एक हमला करके पानी या रसद खाना काट के उसके बाद तुरी फूकी जाती थी कि लोग अभी भी चौकन्ने हो जाएं, लड़ाई लगने वाली है। तो परमेश्वर ने मेंढक भेजे, मेंढक टर 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 करके मिस्रियों के आगे तुरी बजा रहे थे कि अभी भी लौट आइए। वचन पढ़ के देखिए, यहोवा परमेश्वर बार 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 फिरौन को क्षमा करना चाह रहा था, बार 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 बार। लेकिन क्या लिखा है? हिब्रू वर्ड है कवेड, या दूसरा वर्ड है खशर लेबो, जिसका मतलब है दिल को सख्त करना। फिरौन ने अपने दिल को क्या कर लिया? सख्त कर लिया। मैं चाहता हूं अपनी बाइबल खोलिए, कुछ बातें हम पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक निकालिए, टर्न टू बुक ऑफ एक्सोडस एंड वी विल रीड। निर्गमन की पुस्तक निकालिए, उसके हम 7 अध्याय से पहले पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर नंबर 7। टर्न टू एक्सोडस चैप्टर नंबर 7 एंड लेट्स रीड वर्स नंबर 5। निर्गमन की पुस्तक 7 अध्याय का 5 वचन। देखिए प्रभु क्या कहता है। एंड द इजिप्शियन विल नो दैट आई एम द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु कहता है मिस्री जानेंगे कि मैं कौन हूं, यहोवा हूं। हाइया अशर हाइया, मैं यहोवा हूं। हाइया अशर हाइया योड हे वाव हे, तब ये जानेंगे कि मैं कौन हूं। हालेलुया। क्योंकि फिरौन ने यहोवा को ललकार के कहा था, कौन यहोवा, मैं नहीं जानता। मैं बताऊंगा ये सारी स्टोरी के अंदर कैसे परमेश्वर उसे बताता है कि यहोवा कौन है। When I stretch out my hand against Egypt and bring Israelite out of it, मैं अपनी भुजा बढ़ाऊंगा और अपनी प्रजा इज़राइल को मिस्र में से निकाल लाऊंगा। हालेलुया। प्रभु का भक्त आया, मैंने आपको बताया एक के बाद एक बवा आई। असल में परमेश्वर मिस्रियों के सभी देवताओं का न्याय कर रहा था।
32 से ज़्यादा देवताओं का न्याय किया। वो मिस्री अपने देवताओं के पास गए कि ये बवा हटा ले वो देवता, लेकिन वो देवता बवा हटा नहीं पाया। मैं चाहता हूँ आप एक वचन पढ़ें जल्दी से, इसी का निर्गमन की पुस्तक का 10 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक एक्सोडस चैप्टर नंबर 10, और इसका हम पढ़ेंगे एक वचन से। देखिए प्रभु क्या कहता है। देन द लॉर्ड सेड टू मोजेस, गो टू फेरो, फॉर आई हैव हार्डन्ड हिज हार्ट and the hearts of the officials, so that I may perform the signs, so that I may perform these signs of mine among them, that you may tell your children and grandchildren how I dealt harshly with the Egyptians and how I performed my signs among them, and that you may know that I am the Lord. प्रभु कहता है, आपको पहले एक बात और बताना चाहता हूँ। ये जो मैंने आपको बताया, पहली 3 जो बवाएं, फिर 3 का सेट, फिर 3 का सेट, फिर एक बवा। जो पहली 3 बवाएं हैं, ध्यान से देखिएगा, वो जमीन के नीचे से निकली हैं। दूसरी 3 बवाएं धरती के ऊपर से, मिट्टी में से निकली हैं। तीसरी 3 बवाएं ऊपर से आई हैं। पाताल, पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी और पृथ्वी के ऊपर, तीनों ओर से यहोवा ने मारा। और जो आखिरी अंतिम मार पड़ी, प्रभु ने बताया कि जीवन और मौत मेरे हाथ में है, कोई भी मेरे हाथों से छुड़ा नहीं सकता। अगर मैं दंड दूंगा, किसी की जरूरत नहीं कोई छुड़ा जाए। आपको मालूम, यहोवा ने ये बवा भेजी, कई नबियों ने चलो डांटना शुरू कर दिया। ये नहीं उन्हें मालूम कि यहोवा का प्रकोप आया है। जब यहोवा का प्रकोप पृथ्वी पे उतरे, तब उसे डांटना नहीं यीशु मसीह के नाम में, तब यीशु मसीह के चरणों में बिछ जाइए। तब क्या कीजिए? स्यापा कीजिए, पापों को अपने ऊपर लेके अंगीकार कीजिए, राख डाल के, टाट ओढ़ के यहोवा के शरणागत होइए कि हे यहोवा कृपा कर, दया कर, अपना प्रकोप दंड हटा ले। पापों का अंगीकार करिए, राष्ट्रों के पापों का अंगीकार करिए, ताकि यहोवा इस बला को हटाए। बड़े पास्टरों ने अमेरिका में भी बड़ों ने डांटा, अफ्रीका में भी, इंडिया में भी, लेकिन डांटी नहीं गई ये बवा। आपको मालूम, यहोवा का सच्चा ज्ञान नहीं है लोगों के पास। यहोवा कौन सा काम क्यों कर रहा है, परमेश्वर में क्या क्या यहोवा की गति है, उसके काम करने के ढंग क्या है। वचन में लिखा है 103 ज़बूर में, यहोवा परमेश्वर ने अपने काम तो इसराइलियों पे प्रकट किए, मिरेकल साइंस तो इसराइलियों को दिखाए, लेकिन अपने मार्ग मूसा को दिखाए। बहुत सी भीड़ मिरेकल साइंस वाली है, यहोवा को जानने वाली नहीं है। यहोवा को जानिए, उसकी गति, उसकी विधि, उसका चरित्र, उसके काम करने के ढंग को समझिए, जानिए। हालेलुया। आपको मालूम, यहाँ पे लिखा है 10 की 1 और 2 वचन में, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, पहली जब 7 बवाएं आ गई, 7 प्लेग्स आ गई, 7 बवाएं आने के बाद फिरौन ने असल में तौबा की। मैं भी दिखाऊंगा आपको। लेकिन यहोवा परमेश्वर ने क्या किया, उसकी जो विल थी टूट गई अंदर से। उसने कहा मैंने पाप किया, हमने मिस्रियों ने पाप किया है। लेकिन यहोवा परमेश्वर ने, उसकी ईगो नहीं गई, घमंड नहीं गया। सारी फिरौन की लड़ाई ईगो की है, फिरौन के अहंकार की है, और वो अहंकार उसकी उन झूठे देवताओं के ऊपर आस्था की वजह है जो परमेश्वर हैं ही नहीं। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा यहोवा कौन है, मैं उसे नहीं जानता, क्या उसका नाम है, मैं उसे नहीं जानता। तो यहोवा परमेश्वर सिस्टेमेटिकली अपना नाम उसे बताता है। हालेलुया। एक वचन पढ़ लीजिए, इसका 9 अध्याय, निर्गमन का 9 अध्याय, उसका 27 वचन मैं आप चाहता हूँ आप पढ़ें। निर्गमन 9 उसका 27, निर्गमन की पुस्तक कूच की किताब 9 का 27। देन फेरो समन्ड मोजेस एंड एरन, दिस टाइम आई हैव सिन्ड, ही सेड टू देम, द लॉर्ड इज इन हिज राइट एंड आई एंड माई पीपल आर इन द रॉन्ग। उसने तौबा की, माफी मांग ली कि मैं गलत, मेरी प्रजा गलत, यहोवा सही है। प्रे टू द लॉर्ड। हालेलुया। एक महान राजा जो विश्व के कितने बड़े हिस्से पे राज करता था, यहोवा ने उसको, उसके गुरूर को तोड़ दिया। भाई और बहनों, यहोवा को गुरूर पसंद नहीं है। हम सेवकों के अंदर कई तरह का गुरूर होता है। कई बार थोड़ी सी
सफलता मिली होती सेवा में, हम फूले होते हैं गुरूर से और अपनी कामयाबी के तमगे इधर लगा के घूमते हैं। हमें खाली करना है प्रभु के आगे अपने आप को, अपने चर्चे, अपना गुणगान, अपनी वो, हमने कुछ भी नहीं किया। यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह लूका की इंजील में कहते हैं, जब तुम सब कुछ कर लो, सब कुछ कर लो। हमने तो अभी कुछ भी नहीं किया। सब कुछ कर लो। मुझे 30 साल हो गए सेवा करते को। मैं दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में सेवा करता हूँ जाके, लेकिन मैं अपने आप को धूल का कण भी नहीं समझता हूँ। हकीकत बता रहा हूँ अपने जीवन की। प्रभु कहता है, जब तुम सब कुछ समझ कर लो तब कहना कि हम तो तेरे निकम्मे दास हैं। जो कुछ हमें करना चाहिए था हमसे हो नहीं पाया। फिरौन को परमेश्वर ने झुका दिया। हालेलुया। फिरौन क्या कहता है कि मैंने और मेरी प्रजा ने पाप किया है, लेकिन प्रभु क्या कहता है? प्रभु 10 अध्याय के पहले वचन में फिर से पढ़ेंगे। देन द लॉर्ड सेड टू मोसेस, गो टू फेरो फॉर आई हैव हार्डन्ड हिज हार्ट। पहले 7 मर्तबा फिरौन ने अपना मन कठोर किया। कावेड लिखा है, ग्रीक में लिखा कार्डिया सक्लोरोसिस, जो ग्रीक में शब्द यूज हुआ, दिल कठोर हो गए इनके प्रेरित लिखता है, ग्रीक में है कार्डिया सक्लोरोसिस। कार्डिया सक्लोरोसिस एक बीमारी है, जब हार्ट के मसल जो हैं वो काम नहीं करते, उनके अंदर मेलेबिलिटी नहीं रहती। लेकिन हिब्रू वर्ड है खशर लेबो, लब होता है हार्ट हिब्रू भाषा में। तो यहोवा ने कहा कि मैंने फिरौन की क्या की है? फिरौन का मन कठोर कर दिया। परमेश्वर ने इंटरफियर किया। क्यों परमेश्वर मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा से इंटरफेयर करेगा? परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र इच्छा दी है, आप अपनी मर्जी से फैसला लो, जो चाहो करो। आपकी स्वतंत्र इच्छा का फल आपकी झोली में आएगा। प्रभु ने उसकी स्वतंत्र इच्छा, उसकी फ्री विल को वो टूट गया, लेकिन प्रभु ने उसे टूटने नहीं दिया जैसे। और प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने अपनी ओमनीशंस का, प्रभु सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, प्रभु ने अपने सर्वज्ञानी सर्वव्यापी होने का फायदा नहीं लिया कि उसका यहां से दिमाग खोल के उसके दिमाग के विचार को बदल दिया हो। ऐसा नहीं किया प्रभु ने उसको चेंज नहीं किया ऐसे। लेकिन प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने उसका मन कठोर कर दिया ताकि मुकम्मल तौर पे न्याय किया जाए। मुकम्मल तौर पे पहले उसने अपना मन कठोर किया पाप के कारण, फिर यहोवा ने उसका मन कठोर किया। कई बार लोग कहते हैं कि फिरौन का कसूर क्या, यहोवा ने उसका मन कठोर कर दिया, लेकिन उसने अपना मन पहले खुद कठोर किया, घमंड और अहंकार के कारण। और इस्राएलियों के बच्चों को मारने का जो अपराध था उसके पुरखों का, उसके डीएनए में था। इस्राएली बच्चों का, निर्दोष बच्चों का लहू उसके दामन पे लगा था। हालेलुया। तो प्रभु मूसा से और हारून से क्या कहता है कि जाओ, मैंने उसका मन कठोर कर दिया है, और तुम अपने बच्चों को बताना, ये जो सारी दास्तान मैं करने जा रहा हूं, कि कैसे यहोवा परमेश्वर ने, असली भाषा में हिब्रू में लिखा, हाउ आई प्लेड विद द इजिप्शियंस, how I overthrew their great empire, and how I really played with their gods and goddesses, and how I brought their pantheon down on their knees, and how I let them know that your gods cannot save you. I am Yahweh and I rule the universe. मैं यहोवा हूं, मैंने ब्रह्मांड को रचा है और ब्रह्मांड को बनाने वाला मैं ही हूं। हालेलुया। आपको मालूम क्या हुआ? फिरौन का घमंड टूटा, लेकिन प्रभु ने उसको उसकी विल को टूटने नहीं दिया, उसके मन को कठोर कर दिया। वो फिर घमंड से भर गया। और वो क्या कहता है, पढ़े यहां पे। सो मोसेस एंड एरन वेंट टू फेरो एंड सेड टू हिम, दिस इज व्हाट द लॉर्ड गॉड ऑफ हिब्रू सेज, हाउ लॉन्ग विल यू रिफ्यूज टू हम्बल योरसेल्फ बिफोर मी। फिरौन के आगे मूसा और हारून गए, उसे कहते हैं, कब तक, यहोवा कहता है, तू मेरे आगे घमंड करेगा? कब तक तू मेरी प्रजा को ना, ऐसे कभी नहीं बोले वो इतने बड़े राजा के आगे, लेकिन वो इतने अधिकार से और ऐसे शब्द राजा के आगे बोले, इफ यू रिफ्यूज टू लेट देम गो, आई विल ब्रिंग लॉकस्ट इन योर कंट्री tomorrow. They will cover the face of the ground so that it cannot be seen. They will devour little you have left after the hail, including every tree that is growing in your field. They will fill your houses and those all of your officials and the Egyptians, something neither your parents nor your ancestors have ever seen from the day they settled in this land till now. Moses turned and left Pharaoh.
बहुत खतरनाक वार्निंग मूसा और हारून देके गए कि ऐसा तुम्हारे बाप दादों ने कभी नहीं देखा होगा जो अब यहोवा करेगा। टिड्डियां आके सब कुछ चट कर जाएंगी। अब देखिए क्या हुआ, 7 वचन पढ़ें। फेरोज ऑफिशियल सेड अनटू हिम, जब मूसा और हारून चले गए तो फिरौन के अधिकारियों ने, जो उसके मंत्री थे, उसके अधिकारी थे महल के, उन्होंने कहा, will this man be a snare to us? Let the people go so that they may worship the Lord their God. Realize that Egypt is ruined. इसराइल के मंत्री, मिस्रियों के मंत्री, उसकी कैबिनेट, उसके अधिकारी, सबको दिखाई देने लग पड़ा है कि हमारे देवता यहोवा के आगे निर्बल है और हमारे देवता जा नहीं पाए। तो राजा को पोलाइटली जाके कहते हैं कि जाने दो, लोकस्ट आ जाएंगी। तो क्या लिखा है, इसका अगला वचन पढ़िए। देन मोजेस एंड एरन वर ब्रॉट बैक टू फेरो। अब देखिए हिब्रू ग्रामर में आप पढ़ेंगे, हिब्रू ग्रामर में ये नहीं लिखा कौन के आदेश पे लेकर आया। तो ऑब्वियसली ये जो मंत्रीगण थे इन्होंने राजा को मनाया कि ऐसा मत कर, और वो जाके अभी फिरौन और मूसा जा ही रहे होंगे, रास्ते में से वापस ले आए और क्या कहते हैं, वापस ले आए। गो वर्शिप द लॉर्ड योर गॉड ही सेड, बट टेल मी हु विल बी गोइंग। कौन बदल गया, कहता जाओ अपने परमेश्वर, जाओ कौन कौन जाएगा। मोसेस आंसर्ड, वी विल गो विद द चिल्ड्रन, विद अवर यंग ओल्ड, विद द एंड विद द फ्लॉक एंड हर्ड, बिकॉज वी आर टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल अनटू द लॉर्ड। हम अपने जानवर भी लेके जाएंगे, बच्चे जवान सब कुछ लेके जाएंगे, बल्कि मूसा ने कहा हम अपने जानवर का खुर भी नहीं छोड़ेंगे। आपको मालूम फिरौन क्या कहता है, फिरौन कहता तुम चले जाओ लेकिन अपने जानवर छोड़ जाओ। आपको मालूम इसराइली लोग 30 लाख के करीब थे, बाइबल के विद्वान मानते हैं 28 लाख से 30 लाख के बीच, और उनके जानवरों की गिनती 10 गुना ज़्यादा थी। 3 करोड़ जानवर थे उनके। फिरौन कहता है इन्हें छोड़ जाओ। अभी टिड्डियों की बवा नहीं आई, उसने कहा नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, और टिड्डियों की बवा आ गई इनके ऊपर, हालेलुया। और टिड्डियों की बवा आके इनका सब कुछ चट कर गई, हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे आप इसका 10 अध्याय में, चलिए 10 अध्याय और उसका मैं आपके सामने 27 वचन पढ़ना चाहता हूँ। बट द लॉर्ड हार्डन्ड फेरोज हार्ट एंड ही वॉज नॉट विलिंग टू लेट देम गो। Pharaoh said to Moses, get out of my sight. Make sure you do not appear before me again. The day you see my face, you will die. अब दोबारा मत आना ना, ये जो प्लेग आई, इस प्लेग के बाद अब तुम दोबारा मत आना। ये 9th प्लेग थी। ऐसा अंधेरा आया मिस्र के ऊपर 3 दिन के लिए, कुछ भी उन्हें दिखाई नहीं दिया। ये बवाएं लगभग 10 से 11 महीने के बीच चली। परमेश्वर ने सिस्टेमेटिकली मिस्र को डिसमेंटल किया। मिस्र के एक देवता का न्याय, मिस्र के दूसरे देवता का न्याय, मिस्र के तीसरे देवता का न्याय, मिस्र के चौथे, जिन पे भरोसा था मिस्रियों को, उनको तोड़ दिया यहोवा ने। क्योंकि मिस्र के फिरौन ने कहा था कौन यहोवा, मैं नहीं जानता उसे, ना मैं उसकी प्रजा को जाने दूंगा। प्रभु कहता है मैं यहोवा, यशाया की पुस्तक में, सर्वोच्च पहाड़ पे रहता हूं, पर मैं उसके साथ भी रहता हूं तो दुखी और खेदित मन का है, हलीम है और जो मेरा कलाम सुन के कांपता है। यहोवा की संगति हलीमों के साथ है, घमंडी और मगरूरों के संग यहोवा नहीं रहता। हम ज़बूर गाते हैं, आइए गाएं मिलके। कमंडियां खोल ओ ना जानदा, ना झूठियां नाल रखदा यारी। कमंडियां कोल ओ ना जानदा, ना झूठियां नाल रखदा यारी। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा इंतजारी। तदोष ने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारिया हो जारी। आपको मालूम इसराइलियों ने फसा मनाया
हालेलुया। मैंने आपको बताया जिसे हम पेशाक बोलते हैं, पेशाका, यहोवा ने कहा मैं करूंगा, मैं तुम्हारे घरों के ऊपर से जंप मार के निकल जाऊंगा। हर घर जिसके बाहर ताव लग का चिन्ह था, अलफ ताब यीशु मसीह, उस घर के अंदर मौत नहीं गई, बाकी हर एक घर के अंदर मौत घुस गई। हालेलुया। और मौत ने जाके उनको मार दिया, मिस्रियों के पहलोठों को। यहोवा ने फिराउन की फ्री विल को हिब्रू में बोलते हैं बखीरा, फ्री विल को इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन फिराउन की ईगो को जरूर तोड़ा। यहोवा ने उसका दिल इसलिए हार्ड किया क्योंकि 7 मर्तबा उसने अपने दिल को हार्ड किया, और यहोवा जीवित परमेश्वर को ललकारा। हालेलुया। और आपको मालूम, आधी रात के समय, हालेलुया, मिस्र चिल्ला उठा क्योंकि सब पहलौठे मर गए, और लोगों ने इसराइलियों से बोला हमारे देश को छोड़ के चले जाओ, और अपना सोना चांदी हीरे मोती गठरियों में बांध के फेंक दिया। इसराइल ने सब अपना सामान, पहले ही प्रभु ने उनको बोला था, जब मेमने फंसा के मेमने का लहू बाहर लगा देना, अपने घर के अंदर कमरे कस लेना अपनी, और बिस्तर में लेटना नहीं, सारा परिवार खड़ा रहेगा, और खड़ा होके मेमने का गोश्त खाना है, और कड़वा साग पात खाना है, और खमीरी रोटी खानी है, बिना खमीर की। मिस्र का खमीर नहीं चाहिए, मिस्र का पाप तुम्हारे अंदर ना जाए, मिस्र की बदकारी, मिस्र का पैंथियोन, देवी देवता, परंपराएं, रीति रिवाज तुम्हारे अंदर न जाए। खमीरी रोटी खाना, क्योंकि आधी रात को मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। यहोवा ने छुटकारा दिया, मिस्र का सारा धन लूट के ले गए इसराइली। 430 साल की जो उनकी मजदूरी, मेहनत, परिश्रम मिस्र ने नहीं दिया, ऐसे यहोवा ने दिलवा दिया। आपके जीवन के कितने साल खो गए हों, कितना समय जाया हो गया हो, प्रभु आपके समय को वापस ले आएगा। यीशु मसीह का लहू आपकी रिकवरी करवाएगा। वचन में लिखा है, चोर जब पकड़ा जाए तो चोर से 7 गुना और वसूला जाए। हालेलुया। 7 टाइम्स मोर परमेश्वर ब्लेसिंग ला रहा है। मैं बता रहा हूं, ये बवाएं वापस आ रही हैं। ये जो बवाएं आप देख रहे हो, ये संसार में वापस लौट रही हैं, क्योंकि हमारे छुटकारे का समय आ रहा है। इस मिस्र से यीशु मसीह हमें छुड़ा के ले जाने वाला है। इसलिए कमरे कसो अपनी, और चिरागों के अंदर तेल भरो, और खमीर मत खाइए संसार का। पाप का खमीर अपने अंदर से निकाल दीजिए। कमरे कसें, चिराग लबरेज कर दें तेल से, धर्मी और पवित्र जीवन जिए, और यहोवा का कलाम इधर रख लें अपने अंदर, और अपनी आंखें उसकी ओर लगाएं। आंखें बंद कीजिए सभी। दिल का दरवाजा खोले हम अपना, यीशु आया है, रूबी आया है। दिल का दरवाजा खोले हम अपना, यीशु आया है, रूबी आया है। अपनी आंखें लगाए यीशु पर, यीशु आया है, रूबी आया है। अपनी आंखें लगाए यीशु पर, यीशु आया है, रूबी आया है। अपनी आंखें लगाएं यीशु पर, यीशु आया है, रूबी आया है। दिल का दरवाजा खोले हम अपना, यीशु आया है, रूबी आया। आंखें बंद कीजिए।
प्रभु इस दुनिया से छुड़ाने आखिरी तुड़ी फूकी जाएगी दूल्हा दुल्हन को लेने के लिए, जिसके दाग, झुर्री और धब्बे नहीं है। वो दुल्हन को लेने आएगा, ईसाइयों को लेने नहीं आएगा। अपनी तैयारी कीजिए भाई और बहनों। हालेलुया। यीशु मसीह, मैं तेरे लहू को एक एक जन पे छिड़कता हूँ। आई प्लीड योर ब्लड ओवर एवरीवन दैट इज listening to your word and that will hear afterwards. I pray, Father, that you will cover them under your blood, that you would cleanse them in the soul cleansing blood of the Lamb. And Father, prepare them, your bride that is impeccably pure, glorious, spotless, and is stunning beauty standing in your divine aura, your majesty and glory. You are coming for such a pure bride, Lord Jesus. Prepare your people. तेरे लहू की हम जय जयकार करते हैं, तेरे लहू की हम महिमा करते हैं यीशु मसीह। तेरे नाम को जलाल मिले, तेरे नाम को सब धन्यवाद करें, अपनी आंखें बंद करें, धन्यवाद करें यीशु मसीह। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद। तेरे लहू की जय यीशु मसीह। हम तेरी महिमा करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते, तेरी स्तुति करते जीवित प्रभु। तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की महिमा, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह। मैं तेरे लहू की कुदरत को तेरे इन लोगों पे खोलता हूँ, एक एक को आशीषित करें प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। आप अपने कमेंट में लिखिएगा कैसी आपको आशीष मिल रही है, बरकत मिल रही है प्रभु के जलाल के लिए, किसी बंदे के जलाल के लिए नहीं, बंदे को ऊंचा करने के लिए नहीं। और देखिए, आपको यीशु मसीह के संग जुड़ना है। मैं किसी को ये नहीं कहता हमारी सेवकाई के संग जुड़िए, यीशु मसीह के संग जुड़ना है। हालेलुया। यीशु मसीह में उस दाखलता के अंदर बने रहना है ताकि हम बहुत सा फल लाएं और हमारा फल कायम रहे। कल हम 11 o'clock फिर मिलेंगे। यीशु मसीह आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। द लॉर्ड जीसस ऑफ नाज़रेथ ब्लेस यू। Tomorrow 6 p.m. again we'll be seeing each other. Till that time, continue to pray, continue to seek the Lord, continue to dig deeper in His Word. Please, please dig deeper in His Word. As you are, in lockdown, nothing to do, nothing to worry about. You have plenty time. Spend time in the Word of God. Hallelujah. The Lord bless you. यीशु मसीह के जलाली नाम में। कल 11 o'clock I'll see you guys. Please tell other people. Send more requests in my Facebook that more people who are really hungry for God's word get connected. And please do share इन वीडियोस को, शेयर करें अपनी फेसबुक पे और वॉच पार्टीज करें। स्प्रेड द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया।